Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you? Fine, sir. So, how is going on from outside? You are not audible. You are not audible. Not audible. Yes, sir. Trying. Hello, Nishant. How are you? Evening, sir. I'm fine, sir. Okay. Is it audible now, sir? So, can you share your overlap where you are, or you that geometry portion? Yes, sir. Yeah. So Must this you is show the me that how you are proceeding with that? okay. Okay. Uh, Sir, actually, I did most of the parts. So first, what I did is using Grind EQ, I converted the entire Word file into this latex code. Then I simply, No, I could not follow. Yes. sir, using Grind EQ, I converted the entire Word file into latex code and then copied it over Leaf here. So initially there were a lot of formatting problems. Many things are getting many problems were there. So I first, and it was not very much readable also. No sectioning, no paragraph. Just the content was there, and there is no proper look of the Arrangement. content. Yeah. Yeah. Yes, sir. So it is not means it is not just possible to read it also. So what I have to do is first I have to go through the entire content and make it readable. I have not done any major editing till now. Just I am reading it through and arranging it, and when it is arranged, then I will start editing. So yeah, so I was doing this only today. Entire day means I think 5 hours it took to do that. Hmm. So now, your thoughts, you have told nothing new on that. Yeah, yes, sir. Actually, there was, and everything is basic only. I don't find anything. So first is this thing that what we study in all the classes regarding geometry. So Yes. okay, so Go this, down. Go down. yeah. So now it is looking readable. Earlier it was very much scattered here and there. So first I have not done editing now. I have just made it readable now. So this is, These are all yeah, syllabuses. The main yeah, materials. Can you show from that here, materials? yes. Yes. So basics of And geometry. this you can imagine that it was written in the Pluto's Academy, 2,500 years back, 400 years back, is not it? Yes, yeah. This is, So yeah. geometry is so important for us. That time it was that important. Now they are telling fractal is more important. That is also there. Yeah, yeah. Yes, sir. Okay, next go, go slowly. Okay. Basic things, point, line as we start. Okay, go down. Yes, yes. Now these definitions are coming about all these points and lines, then curves. And sir, yeah, Okay. and sir, actually, this figure in PowerPoint there were many figures, but latex could, while converting to latex, they are not appearing. So I think I have to include those again. Sir, here, for example, these figures will come because they are actual figures. But where you have created, for example, uh, yeah, these figures are not coming. The figures which are created in PowerPoint only, they are not coming. For example, these figures are not coming, and yeah, these are also not coming. These figures are Hmm. not coming. So I think I have to, using that text tool, I have to draw these all. So I will do that. That is remaining. So that I will do. Uh, so yeah, these are the definitions, sir. Polygon.
lines and angles. So different types of angles, then triangles and the different types of triangles, quadrilaterals, different types of quadrilaterals, polygons, and three-dimensional shapes, uh, then practical geometry, so using these equipments, these tools. Then again, lines and angles, so in detail about the lines and angles, different things. Then triangle and its properties, so there are different things. Special triangles, equilateral triangle, isosceles triangle, then congruence of triangle, criteria for congruence. So actually, these things, criteria, what you are doing is you are summarizing the entire content of 2 to 3 classes or 4 classes in this book. So these things, yeah, since I know what is SSS congruence criteria, I read through this, I know, but because who is reading it for the first time and he doesn't know, for example, a 6th or a 7th class boy, so he will not get it with such a brief introduction. This is entire thing also, everywhere everything is given very briefly. For example, this because the 6th and 7th class students, somewhere in that class the mind is not that developed, so they need more explanation for the same thing, then only they can understand. This is good for All a, these are supported with figures, no? yes, most of them, they are not coming because, yeah, they are supported, so they, I will include that they are not coming using GrindEQ. Yes, and the last is this polygon and the relation between these things. This So is, I am having a video. I have made it video. this one is good, sir. This part is other parts are very much simple, and this is something, though I studied it in earlier classes, but I forgot it mostly. So when I looked it, so it was good, this part. And yeah, this is the book, sir. This much. Go ahead, go ahead, go ahead. So this much. It is there. This much only in Up to geometry. this, After this, geometry section is over. Some other section is starting. means geometry is up to this. Yeah. Yes, sir. Now you think this is a 30-page almost thing, and many times what happens now in school, that we will bring it in preface and all those things. School and colleges, we go on reading different geometrical parts, different geometries in pieces, and we never get chance to integrate that. And we think that geometry is a vast subject. Okay, so this is not, and in one place, whatever, suppose a class 8 student want to review that whatever geometry he has read, no book is available for him. There will be many books in geometry, but that is so lengthy and so other things, problems and this and that. They make it for selling the book, but not that summarizing what is important to learn. So I have done that in one place, and all these thoughts, no, actually, uh, I tell you one story actually. Then how you'll understand that. Once I visited IIT Bombay, and I was talking to HOD mathematics. So I was explaining how I am trying to do popularize mathematics, all are these things. Then I told that geometry is so important, and we should make everything geometrical way. If we can represent, then everything will mm, become easy to understand. A lot of means some discussion was going on. Then he told me one point that Mr. Das, you know that there is no geometry subject after class 10.
And in that sense, I was really not knowing. But what was my answer, you know? I thought a little bit, but after that, the answer I have given, then he could not get any means argument on that. Sir, I think I know the answer. I think Can you tell me? I think you would have said that whatever else we read, it is coming from the base is geometry only. We are No, reading. I told that whatever we study after 10, all are geometry. So it is not actually mentioned that we are reading geometry. There is no subject which is not geometry. So when this is true, then these basic ideas, if you don't know, that you see, say that congruent and similarity, these two we read, but how this is related to that fractals? Fractals, everything should be similarity. I am not talking there everything should be congruent. But if you leave here similarity and congruent, then you will not feel much importance on these two terms. So in casual reading, you will not find any interesting. And similarly, this pattern and similarly this, I think somewhere it has come that symmetry. Class 7, I think there is a mention of symmetry. Uh, Not in this chapter. There are some particular chapter on pattern and symmetry. And after that, nowhere we talk about symmetry. And you know, at present, you know that symmetry is so important, and based on that, so many subjects, abstract algebra and everything has been developed. So until unless we don't have these basic ideas, then it is very difficult. And here, again, you go to my presentation. Do you have that COEP presentation? Yes, sir. This is the part of the. Okay, I'm opening that presentation. Huh? Uh, Original presentation. Go to that. What is mathematics definition? Can you section? You can collapse the section. Yes. Then geometry, abstract algebra. Go down, This and 10th. here you What? can no. Okay. You click on that. Let us see what is there. Yes. Go down slowly. Here I am telling how radius is related to volume and all those things. Now go down. So this is known and unknown. We are required that we should know and unknown. And known and unknown is jointly for us a two element. One known, one unknown. And in that sense, two elements, when we talk about two elements, geometrically it is represented as a line, point. Yes, sir. So indirectly, whatever we have one unknown, and we are finding it through a one known. So this one known, one unknown combinedly are making a pair of elements, and these two elements combinedly geometrically represent a point. So indirectly we are searching points.
Can you think of that? Yes. So geometrically we are searching point, and these points, when it is a group of points, means suppose with radius area will go on changing. So radius and every radius and every area, these two will combine with a point, and all the radius, all the areas collectively will produce a line. These lines similarly will produce, if there is two means two known and one unknown, then it is a function of two variables. So these three also combinedly a point. These two known, one unknown. Many system having that. So two known, one unknown, geometrically what I should say, we are finding a point in a plane. Here one unknown was collectively forming a line. Here two unknown collectively forming a plane. And all this plane, every point will have a corresponding unknown. And that unknown is Z. For us, geometrically, it is a surface. But it may be true for any system which is having two unknown and one known, two known and one unknown. Suppose any subsystem you got where you have two known things, from that you want to infer third one unknown parameter, then this will be the thing, and it goes on. There can be three unknown, three known, one unknown, four known, one unknown, something like that. It will go on, but that will not having a geometry shape. But once we have 2D and 3D geometry shape, that all ideas of this we can be extended. So now you got my point. So indirectly, for a single point, we are not interested that much. Single point, suppose particular, if radius is 5, then a square having a area of 5 square means 25. This is one known and one unknown case. But we are interested in what will be the length for all length, what will be the all areas of a square. Yes. So L and L square will be a relation, and L and L square is algebra, but X and Y is for us a line. So when we are targeting to solve a algebra problem, we are actually creating a line geometrically. So this is, I am talking about when algebra talking about this radius and area, we are talking about line. So any system which is connected with one known and one unknown, for us it is nothing, whether it is area or radius or length and breadth, nothing. For us it is a line. So every system, mathematically we can think of a line or a surface for one case, one case, and it will go on 1 case, 1 case.
So I told you first include this part, definition of mathematics part, then geometry will become vibrant. Otherwise, in isolation, if you study geometry, then you know all those things. But the play of all those things will come and go down now. You see, here I am telling so many things are related with two parameters. But for us, it is a line. All represent a line. So I am not bothered about. I am seeing this kinematic energy to this potential energy or force with acceleration or velocity, voltage or resistance, or X plus By is equal to C, or V is equal to pi 4 by 3 pi r cube. All for me is a line. So I will not study all this individually. I will study only one thing, what is the properties of line. And all this property will fit in these equations. So I will learn one mathematics and I will solve all the systems. This should appear. Actually, I have written here that, and in my class also I explain these things. And once you know that, I have to know the properties of a line. Now question is come, if you know the properties of line, then all this line will connect to your system. So you need not learn everything individually. You can learn from this line properties. You know all properties of line. You learn means that is a geometry part. Properties of a line. So geometry part. So with these properties, if you know, then you can solve all these problems related to this. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. This can make very good documentary. that these definitions and primarily, hello Prem, how are you? Hello, sir. I'm Yes, fine. light jalao. So you are thinking about geometry. Yes, okay, sir. So I am telling that we have hundreds of systems, and all these systems have what is echoing. My other laptop may be working or something. So all these equations, no, they are represented by some line. Can you see my these equations of what Nishant is presenting? Yes, sir. So when we plot these equations, you will get a line only. Yes, sir. So you need not learn about those each function individually. If you know the all parameters related to all properties related to a line, you can solve. Here some lines are straight lines, some lines are curved lines, is not it? Yes, sir. So the c is equal to 2 pi r, that I think it will be a straight line. Yes, sir. And Yes. v is equal to 4 by 3 pi r cube, it will be a curve. Yes, sir. Ax plus by will be a straight line. F is equal to ma can be a straight Yes, sir. line. Ke is equal to half Yes. m square will be a elliptical line, curved line. So this will be line simply, nothing else. So I will not go to study. So जैसा मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल पढ़ने जाता है ना, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम ये लाइन पढ़ेंगे और सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. Yes, sir. Make sense? Yes, sir.
तो तुमको कोई भी सिस्टम फ्यूचर में मिलेगा तो देखना उसमें कौन सा पैरामीटर्स तुम जानते हो और कितना नहीं जानते हो, तो उसमें से देख लेना। जे अगर एक पैरामीटर हम जानता हूँ और एक दूसरा पैरामीटर हमको निकालना है तो तुमको ले ठीक है, इट विल बी ए लाइन। बट अगर Yes, कोई sir. सिस्टम Like लगा, हाँ one equation we used to find like a lot many places, like while we were studying, like first order differential equation, like it should. नो डिफरेंशियल इक्वेशन आई विल गो लेटर। डिफरेंशियल इक्वेशन वो तो एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। So like that, there were like in every subject there was a topic related to that, but all were interrelated. And if we know the properties of the like only the terms, then we can solve. Then it basically boils down to a mathematical equation. Yes, and equations, all equation will be a straight line or a surface, or beyond that we cannot imagine. So this is the thing. Now, uh, what is the, and I am telling these things because you should start the geometry chapter with this, and then include those in whatever we study in class 1 to 10, that we are summarizing in that question. Already you have done, Nishant, whatever you done, then is it making sense then? Because we should know that properties also. Otherwise, it is difficult to move ahead. Okay, now go down. Now this relationship is either linear or non-linear. Go down. सो लीनियर होगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन लीनियर होगा तो ऐसा। नाउ गो डाउन। अभी ऐसा लाइन जो होता है, कितना टाइप का ऐसा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन कितना टाइप का लाइन होता है? one type. हाँ One type, sir. एक ही होता है। बोलो एक दो। सर लाइन मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जैसा स्लोप और इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। हाँ, नाइन ये जियोमेट्रिकल ये होता है। तो तुम जब सोचोगे कि इनफाइनाइट होता है तो तुम्हारा मीन्स ये हाथ से निकल गया। इनफाइनाइट चीज को हम कभी टच नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेशन हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा डेफिनेशन चाहिए कि 2 टाइप का लाइन होता है, 4 टाइप का लाइन होता है, 10 टाइप का लाइन होता है। सो अभी सोच के बताओ कि कितना टाइप का लाइन हो सकता है? स्ट्रेट लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन। सर मे बी 3, एक जो इंक्रीजिंग लाइन, कांस्टेंट लाइन एंड इंक्रीजिंग लाइन। 2 ही होता है, एक है इंक्रीजिंग, एक है डिक्रीजिंग। सबका इधर ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। एंड उसका एक्सट्रीम केस होता है कि सम लाइन either increasing or मीन्स ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। सो एक होता है कि इधर ऊपर भी जा रहा है, नहीं इधर और नीचे भी आ रहा है, सो दैट विल बी वर्टिकल लाइन। और रहेगा न इधर ऊपर जा रहा है न इधर नीचे आ रहा है, वो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्चुअली 2 ही होता है, एंड वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्सट्रीम केस ऑफ 2। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन 2 टाइप है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, और ये सारे डेफिनेशन मेरा क्या हुआ है तो ये इंक्रीजिंग तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? ये नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तुम दोनों बोल सकते हो, ये बढ़ रहा है बोल सकते हो और घट रहा है भी बोल सकते हो, बिकॉज वर्टिकल है, क्या करेगा। बाकी कोई लाइन है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग कैसे समझ में आएगा?
हाउ यू कैन टेल, हमको तुम बता रहे हो कि हम एक इंक्रीजिंग लाइन में काम कर रहा हूँ और मैं एक डिक्रीजिंग लाइन में काम कर रहा हूँ, तो तुम वो हमको कैसे कन्वे करोगे? सर जब नोन पैरामीटर को बढ़ाने पे अननोन पैरामीटर बढ़ हाँ, रहा नोन है, पैरामीटर क्या है? एक्स, Which parameter you will tell? नोन पैरामीटर एक्स है एंड अननोन वाई है। नहीं, लाइन का बात कर रहा हूँ, लाइन का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना है। स्लोप ऑफ द लाइन सर। हाँ, तो स्लोप ऑफ द लाइंस कैसे बोलोगे? हमको बताना है ना भाई, हम एक इंक्रीजिंग लाइन में काम कर रहा हूँ, तो क्या बताओगे कि हमको समझ में आए कि हम इंक्रीजिंग लाइन में काम कर रहा हूँ? हम नहीं देख रहा हूँ तुमको, तुम्हारा साथ हमारा कार्टन दिया हुआ है, तो तुम वो ऐसा ओके, करके बता नहीं सकते हो। तुमको बोलना है कि मैथमेटिकली कि हम इंक्रीजिंग लाइन में काम कर रहा हूँ, और प्रेम को बोलना है हम डिक्रीजिंग लाइन में काम कर रहा हूँ। कैसे बोलोगे? और शुभम को सदब को बोलना है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन को काम कर रहा हूँ। कैसे बताओगे तुम? Is it like I am working on neither increasing nor decreasing line? हाँ, वो बोलने का नहीं, वो हमको वो तो पता नहीं है, हम तो लेमैन है। हमको ऐसा कोई पैरामीटर बोलो लाइन का जिससे हमको समझ में आएगा। ये डिस्क्रिप्शन है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बोलना है, वो लाइन का Working at प्रॉपर्टी बोलना है। जे हम ये लाइन में काम कर रहा हूँ तो हमको समझ में आ जाएगा, हाँ तुम इंक्रीजिंग लाइन में काम कर रहे हो। working at a प्रेम particular बोलेगा, angle, हाँ बोलो बोलो। like I am working on a horizontal, then I can say that I can work. हॉरिजॉन्टल I लाइन का बात नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, प्रॉपर्टी बोलना है। angle एंगल with the बोलो, x-axis. हाँ ठीक है, एंगल बोलो तो ठीक है। और तुम क्या करोगे निशांत? सर एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा है, एक्चुअली dy/dx पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, dy/dx नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, और dy/dx 0 है तो हॉरिजॉन्टल है, और dy/dx इनफाइनाइट है तो वर्टिकल है। सो देखो, dy/dx से हमको वो पता चल रहा है, बट जब स्लोप पढ़ रहा हूँ इसको उसमें जियोमेट्री में, उसका जो इतना बड़ा इम्प्लीकेशन है, तो हमको वो ग्रेविटी पता ही नहीं चलेगा कभी। समझ रहे हैं ना? तो जियोमेट्री, बेसिक जियोमेट्री तो जानकारी होना चाहिए। वो तो ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, वो बहुत ये होगा, बट उसी से सारे चीज होता है शुरू। एंड दिस स्ट्रेट लाइन मैं बोल रहा हूँ, बहुत इजीली बोल रहा हूँ, और तुम लोग भी सुन रहे हो। एंड यू नो यूक्लिड ऑल्सो, यूक्लिडियन जियोमेट्री हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना। 2300-400 साल पहले यूक्लिड ने वो लिखा था, और उसका वो जो ऑब्जर्वेशन था जियोमेट्री का, सारे इतना सॉलिड ऑब्जर्वेशन था, अभी भी वो चलता है। मीन्स इट इज ऑल रिलेवेंट नाउ इटसेल्फ इन मॉडर्न डेज ऑल्सो। बट उसमें उसने सारे चीज शुरू करता था एक नॉन थिंग से, जो हम नॉन थिंग है उससे वो एक्सप्लेन करते जाते थे जो अननोन्स है। उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन, ये यूक्लिड का वो जो नोन होता है उससे शुरू करके फिर आगे बढ़ता रहता है, ये सिस्टम को क्या बोलता है? लेम्मा। हाँ, लेमा। क्या होता है लेमा? हम लोग का तो इंग्लिश में होता है ना, बंगाली मीनिंग पता नहीं चलता है, हम लोग का अंदाज करना पड़ता है। तो लेमा क्या होता है? I think lemma is a short proof that we can include that in theorem. हाँ, समथिंग ऐसे ही होगा। बट उसने सारी चीज ऐसा किया कि सबका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मीन्स वो 2-3 नंबर जब पढ़ाएगा, तो 3 नंबर में जो जो प्रॉपर्टीज वो बोलेगा, ऑल दिस प्रॉपर्टी मस्ट हैव इन 1 and 2। मीन्स ऐसा कोई प्रॉपर्टी वो छोड़ता नहीं है जिसका बेस नहीं है।
दो लाइन इनफाइनाइट तक अगर नहीं मिलता है तो पैरेलल होता है। वो बहुत पांच फिफ्थ पोस्टुलेट आई थिंक, और फिफ्थ वो क्या बोलता है इसका, 5 नंबर सूत्र जो होता है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। द पैरेलल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी। पैरेलल लाइन तो कभी मीट होता ही नहीं है कहीं पर, बट उसका शायद ऐसा कुछ है, पैरेलल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी एंड ही इज ट्रू। एनी हाउ, तो वो जो है उसमें भी ये स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन नहीं दिया। उसमें सर्कल का डेफिनेशन है, सबका डेफिनेशन है। तो निशन, मैं इसलिए ये क्लास कर रहा हूँ, जो ये सारे जानकारी तुम इसमें घुसोगे ना, तो ये एक एक सब्जेक्ट बन जाएगा। ये वो रामायण बन जाएगा, एक एक महाभारत बन जाएगा। अपरेंटली कुछ नहीं है, जो देख नहीं सकता है उसको पास, उसके लिए कुछ है नहीं। बट तुम लोग का जैसा स्टूडेंट है, जो बहुत डीपली सोचना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत कुछ ये सीरियसली करना चाहते हो, उन लोग के लिए तो ये सारे जानना बहुत ही जरूरी है। इसी से सारे चीज हम ये, इसमें जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे का जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज सारे आ रहा है ना, सारे चीज। और मेरा जो IIT बॉम्बे का जो मेरा आंसर था, बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स आर बिकम्स ज्योमेट्री, सो स्पेशली उनका नाम नहीं लिया जाता है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ऑल आर ज्योमेट्री ओनली। क्लास 1 to 10 तक वो ज्योमेट्री होता है, इसलिए उसको ज्योमेट्री नाम दिया जाता है। बट आफ्टरवर्ड्स दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सारे छह सब्जेक्ट इस ज्योमेट्री होता है, एंड दैट्स व्हाई उसके लिए अलग से नाम नहीं दिया जाता है। सो दैट वाज माय आंसर। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। एक होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नाउ गो डाउन। देखो स्ट्रेट लाइन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसका एक इंटरसेप्ट रहेगा, एक स्लोप रहेगा। चलो इसमें, एंड इसमें क्या होता है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि वेरिएबल्स, पैरामीटर्स और कांस्टेंट। एक इक्वेशन जब मिलता है, अभी देखो उसमें भी एक कितना बड़ा इशू है। ऐसे अपेरेंटली देखोगे तो इक्वेशन है, इक्वेशन है, बट इक्वेशन का पार्ट्स देखोगे तो क्या क्या पार्ट्स है, वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है, कांस्टेंट है। अभी ये इक्वेशन दो तीन इक्वेशन में डाला, इसको देख के बताओ कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा पैरामीटर है, कौन सा वेरिएबल है। X और Y वेरिएबल, एक्स एंड वाई वेरिएबल, and M should be constant because it has the same slope along the line. एम फिर से बताओ। M M constant होना चाहिए। ओके, बचता C। पैरामीटर मुझे आइडिया नहीं है किसको कहते हैं। निशांत। ये सर एक्स और वाई वेरिएबल होगा एंड एम और सी पैरामीटर होना चाहिए। एंड सी, एम एंड सी दोनों पैरामीटर हैं एंड एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं। एंड कांस्टेंट कौन सा है? सर एम एंड सी दोनों पैरामीटर हो गए तो कांस्टेंट तो फिर नहीं है कोई भी। नो कांस्टेंट। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है। अभी नीचे जाओ। नेक्स्ट इक्वेशन। सर इसमें दोनों कांस्टेंट है सर, मतलब गेस कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट एक्स एंड वाई वेरिएबल है एंड 5 and 9 कांस्टेंट है। नीचे का थर्ड वन, थर्ड में ए एंड आर वेरिएबल्स हैं एंड बाकी दोनों constant। पाई इज अ कांस्टेंट। ओके, तो इसमें 5, 5, 9, एम, सी, इसमें चारों में पैरामीटर कौन सा बोलेंगे? 5 भी एम है तो वो कांस्टेंट हो गया। तो पैरामीटर और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है?
पैरामीटर है कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो जब तक उसने वैल्यू नहीं ली है देन इट इज कॉल्ड अ पैरामीटर, एंड जब वो वैल्यू ले लेता है देन इट बिकम्स अ कांस्टेंट। Yes, this is the mistake that Gilbert Stung has done. आप समझ रहे हैं ना, वो क्या बोला था कि लैम्डा एंड एक्स दो वेरिएबल है, उसको मल्टीप्लाई किया तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। लैम्डा, actually lambda is parameter, here m is parameter, c is parameter, but c का जब वैल्यू दे देता हूँ, y is equal to mx plus c represent a infinite number of lines, but y is equal to 5x plus 9 represent a particular line. So देखने में इसमें लगता है कुछ है नहीं, बट इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है द वे यू थिंक इन मैथमेटिक्स और नॉट। माइक्रो लेवल में तुम ये नहीं सोचोगे तो तुमको ये कभी स्ट्राइक भी नहीं होगा। पैरामीटर क्या है, हम लोग तो बोलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली पैरामीटर पैरामीटर पैरामीटर, बट पैरामीटर का एक्चुअल डेफिनेशन हार्डली क्लैरिटी है हम लोग को। सो दीज आर द थिंग्स। सो देखो ये पैरामीटर आ गया, तो ये सारे पैरामीटर हम कोई भी स्टेट मीन्स लीनियर सिस्टम है तो उसका साथ ये पैरामीटर भी जुड़ा हुआ रहेगा। वो कैसे एक दूसरे के साथ वैरी करेगा, एवरीथिंग यू कैन राइट फ्रॉम दिस। नीचे जाओ। हाँ, सो ये सारे जो कुछ कुछ ये दिया, नीचे जाओ। एक्सेल कमांड ये थोड़ा दिया था, मैनी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो नीचे आया शायद। हाँ, ये राइजिंग एंड फॉलिंग दिस टू टाइप का है, एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। चलो फिर नीचे जाओ, नीचे जाओ। फिर एम रूट, अच्छा इसमें रूट भी है, एक इक्वेशन होगा तो रूट होगा, रूट क्या होता है। फिर नीचे जाओ, तो ये देखो इतना सारे चीज तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का साथ जुड़ा हुआ है, और इतना सारे चीज तुम अगर एक बार तुमको क्लैरिटी हो गया तो एनी लीनियर सिस्टम तुम इजीली मीन्स यू कैन लर्न। तुमको इंडिविजुअली सीखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। वो रिलेशनशिप जो सिस्टम पढ़ रहे हो वो सिस्टम अगर लीनियर है तो सारे पैरामीटर इसी में आ जाएगा। नाउ गो डाउन। नाउ ये है तुम्हारा नॉन लीनियर सिस्टम। यही सारे गड़बड़ होता है। नीचे आओ। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारे प्रॉपर्टीज इसमें, ये टर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब तो कर्व लाइन के साथ जुड़ा हुआ है ना। बट जियोमेट्री जब पढ़ोगे तो ये सारे चीज तुम ओवर मीन्स बाईपास करके आ जाओगे। यू विल नॉट कंसंट्रेट, तुमको लगेगा वो जियोमेट्री डाल जियोमेट्री है, बट लाइन का साथ इतना सारे चीज हमको सीखना चाहिए जो 10 तक सिखाया नहीं गया। एंड आफ्टरवर्ड्स जियोमेट्री बोल के कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। अगर तुम ये सीख नहीं पाओगे तो ये जो प्रॉपर्टीज होगा, जो भी सिस्टम तुम स्टडी कर रहे हो, तुम मैकेनिकली कोई फार्मूला सीखोगे, अप्लाई करोगे और आ जाओगे। बट ये अगर तुमको क्लैरिटी है तो तुमको कोई भी ऐसा नॉन लीनियर सिस्टम देखा, तुम इक्वेशन देख के बता दोगे कि ये सिस्टम तो नॉन लीनियर हो गया, तो उसका साथ ये सारे प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ रहेगा। और एनी पैरामीटर ऑन दैट you can calculate from that। वो सिस्टम क्या है तुमको देखने का भी जरूरत नहीं है, इसका एक सारे पैरामीटर उसमें रहेगा, ये जो इधर तुम पढ़ रहे हो। सो मेरा ये है, यू लर्न ऑल दोस थिंग्स जो जियोमेट्री में तुम नहीं पढ़ सकोगे, कंप्लीट नहीं होगा, बट ये
तुमको जानकारी होना चाहिए। तो ये बोलने के बाद मैं वो बेसिक ऐसे ही पुट अप करना हूँ, ये सब जानकारी के लिए वो बेसिक मीन्स फंडामेंटल जानना चाहिए। एंड उसमें भी हम स्ट्रेस करेंगे क्लास 1 to 10 हम लोग को इतना ही पढ़ाया जाता है। वो बहुत बच्चे इतना डरा हुआ रहता है ना, अरे जियोमेट्री में क्या होता है क्या होता है, कुछ होता नहीं है, इतना ही होता है। तो एटलीस्ट कोई भी क्लास 7-8 में जब जाके उसको ये होता है, क्लास 6-7 तक तो बहुत सारे स्टूडेंट को सीरियसनेस ही होता नहीं है, वो मस्ती करता है। बट 7-8 में बहुत सारे स्टूडेंट लुक बैक करता है, लुक बैक इन द सेंस वो सोचता है क्यों हम ऐसा है, हम थोड़ा सीरियस करके देखेंगे। तो वो पीछे देखना चाहता है, क्या पढ़ा, क्यों ये डिफिकल्ट लगा। तो इसको ऐसा हैंडी कोई बुक मिल जाएगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, व्हाट आई फील। एंड सीरियस स्टूडेंट को भी ये चीज़ बार बार रिपीट करना होगा। हम जो लिखा वो ज्योमेट्री का साथ अगर तुम बोलोगे, ज़्यादा मटेरियल लिखना नहीं चाहता हूँ मैं, वो पेज बाई पेज भरना नहीं चाहता हूँ, वो ज्योमेट्रिकल फील देना दैट दैट्स ऑल। हमको वो हमारा इम्पोर्टेंस है। सो यार मॉडलिंग का नहीं है, जियोमेट्री इन जनरल स्टैटिक सब्जेक्ट, बट उसका यूज डायनामिक हो जाता है। जैसा ये नॉन लीनियर हो गया तो ये तो वो फॉर्म होता रहेगा, बहुत सारे चीज होते रहेगा। तो सर उसमें जो ज्योमेट्री की बुक है, आई विल इंक्लूड फिगर्स फॉर ऑल द टॉपिक्स। आई विल ट्राई टू इंक्लूड कि कोई ऐसा टॉपिक ना वो रहे जिसमें करके फिगर ना हो। वो डाल सब्जेक्ट नहीं है, वो डाल किया हुआ है एंड उसमें से ही सारे चीज आएगा। ये देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है अभी तुम लोग पढ़ा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कैन यू डिफाइन व्हाट इज दैट? मैथमेटिकली वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब है क्या फिजिकली क्या है? अच्छा हाँ, फिजिकली तो ऐसे होता है कि कॉनकेव टू कॉन्वेक्स अगर कर्व ट्रांजिशन ले रहा है तो फिर जिस पॉइंट पे वही एक बीच में पॉइंट होगा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये जो डेफिनेशन तुम दिया, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड स्कूल में और अच्छा टीचर का साथ जब पढ़ते हैं तो वो बच्चे को इसका क्लैरिटी मिल जाता है। वो पक्का कोई टीचर ने तुमको ये ड्रॉ करके बताया होगा। एम आई राइट? बट ऐसा गुड टीचर बहुत कम मिलता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो परेशानी होता है, दे नेवर अंडरस्टैंड। इवन मैं ऐसा भी देखा, बहुत पीएचडी डॉक्टरेट किया हुआ पर्सन है, बट उसको भी ये पॉइंट क्लैरिटी नहीं है। ये जब तक कोई ऐसा फिगर कॉन्केव कॉन्वेक्स पॉइंट इंटरसेक्शन ये करके नहीं बोल देगा एक बार, और एक बार बोल देगा तो सारा जिंदगी तुम्हारा याद रहेगा। पिक्टोरियल एक बार कर देगा तो तुमको मजा रहेगा। सिमिलरली एक एक और एक है पॉइंट ऑफ, उसको क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट नहीं, अभी मेरा भूल गया, नाम नहीं याद आ रहा है। अनस्टेबल पॉइंट होता है, उसको क्या बोलता है उसको, आई एम इन एनीहाउ, चलो उसको भी है। मैक्सिमम सर, मैक्सिमम मैक्सिमम तो वो होता है ना, तुमको वही बताया। तुम अभी मैक्सिमम जब पढ़ने जाओगे ना, तो वो जो मैं बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन, राइजिंग लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 होगा तो वो इधर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा, बिकॉज कार उधर से बेंड करके नीचे आ रहा है और कार उधर से बेंड करके ऊपर जा रहा है। तो वो डेरिवेटिव इधर हॉरिजॉन्टल ही होगा इन बोथ केसेस। तो जहाँ पर डेरिवेटिव जियोमेट्रिकली हॉरिजॉन्टल होगा, लाइन हॉरिजॉन्टली होगा, वो इधर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। जियोमेट्रिकली देखोगे तो सारी चीज बहुत ही इजी हो जाएगा। शैडल पॉइंट, शैडल पॉइंट, शैडल पॉइंट क्या है?
सुना नहीं सुना? सर SADDLE। SADDLE। हाँ सर, मतलब सुना है बट बिल्कुल भी याद नहीं है कहाँ सुना है, देखो समझे नहीं? ये इसमें देखो नेट में। तो 3D में वो मैक्सिमा में हो। ये देखो, ये राइट सेकेंड टॉप लाइन, हाँ वो वाला देखो, नहीं हाँ उसको देखो, नहीं उसको क्लिक करो, बड़ा करो, इसमें शैडो पॉइंट कौन सा है देखो। हाँ सो ये तुम जो कनकेव कन्वेक्स का बोल रहे हो ना, 2D का केस बोल रहे हो, वो 3D का केस ऐसा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लोप है, एक है अपवर्ड स्लोप, एक है डाउनवर्ड स्लोप। तो ये कैसे भी हो सकता है कि ये बढ़ेगा और घटेगा। ये सैडल पॉइंट में जो होता है ना, तुम ऐसा नीचे गिर सकते हो, अगर उठ गया तो तुम ऊपर जाओगे। तो लाइफ में ऐसा होता है कि ये मैं अभी सैडल पॉइंट में हूँ। ओके, मैं मेरा कंडीशन जब बोले अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं बहुत ऊपर था, मीन्स आई हैड वेरी फिनेंशियल पावर। उस टाइम ओएनजीसी में जॉब करता था, और ओएनजीसी से जब हम सेपरेशन लिया था, वो बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। आई गॉट दैट टाइम 10 साल पहले ऑलमोस्ट 1 करोड़। सो वो मैं ऊपर ऊपर में था, बहुत ऊपर में था। फिर एक पोजीशन में मैं ये कंपनी खोला, रिसर्च शुरू किया, ये सब करते करते बहुत एक्सपेंडिचर चलाते गया, और एक टाइम हो गया मैं सैडल पॉइंट में आ गया। तो मेरे को तब रेवेन्यू नहीं आ रहा था और मेरा पास पैसा भी नहीं था। फिर मेरे को दोनों तरफ थोड़ा इधर उधर स्पिन करते करते फिर नीचे गया, फिनेंशियली मैं माइनस में चला गया, मैं तो सैडल पॉइंट से भी नीचे आ गया। बट नाउ तो दुबई ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया, दुबई जो मेरा टेक्नोलॉजी था वो ले लिया, तो नाउ टू सम एक्सटेंट मींस स्टेबल है, वो सैडल पॉइंट में ही है, यू कैन से। अगर अगर सब ठीक ठाक चले तो इट कैन गो अप, और नहीं तो एनी हाउ अभी तो डरने का नहीं है, क्योंकि हमारा करियर खत्म ही हो गया कि मीन्स मेजोरिटी ऑफ माय करियर में जो लोग करता है वो सारे कर लिया। मैं अभी ग्रैंडपा बन गया, वो बच्चे लोग सब सर्विस कर रहा है, सो कुछ नहीं, अपना घर है, अपना कुछ, तो इन दैट वे नहीं है, बट इकोनॉमिकली आई एम इन सैडल पॉइंट। तो ये सारे चीज एक्सप्लेन करने के लिए, ये सारे चीज नॉट ओनली जियोमेट्रिकली, ये लाइफ का भी ये देता है, means situation, you can explain I am in a shadow point. It means you have both the chances to climb up or fall down. फॉल डाउन करोगे तो तुम फिनिश हो जाओगे। तो करियर में भी चलता है तो वो सब रिस्क लेना पड़ता है। कितना रिस्क लेगा, तो लोग कोई रिस्क लेता नहीं है। आई हैव टेकन ए रिस्क, आई हैव reached a saddle point and I am moving now in saddle point। कोई तो ओएनजीसी का जैसा इतना बड़ा जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता है। एंड ओएनजीसी में सबसे ज़्यादा है सिक्योरिटी है एंड ऑनर है। तुम कहीं भी जाओगे तो तुम ओएनजीसी का ऑफिसर है तो तुमको अलग से एक रेस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज वन ऑफ द नवरत्नस नो, इंडिया का हाईएस्ट रेवेन्यू वाला कंपनी है। एनीहाउ, तो दिस इज शैडल पॉइंट। तो ये सारे जियोमेट्री के साथ रिलेटेड है। और तुम जब ऐसा तुमको सिचुएशन आएगा तो एवरीथिंग यू कैन कोरिलेट ऑल दिस पैरामीटर्स। तो लाइफ का साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, ये जो इंडिया का जो हम लोग डिसीजन ले रहा हूँ, हम लोग कंटिन्यूअस हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है, एंड इमीडिएटली हम लोग को पता नहीं चलता है वो डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा। तो वो सारे चीज़ तुम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करोगे तो बार वाली एक्सप्लेन करते रहोगे तो वो
explanation का कोई means that will be qualitative means इंटरेक्शन, उसमें से सॉलिड कुछ नहीं निकलता है। मीन्स तुम तुम्हारा जैसा एक्सप्लेन करोगे और मैं मेरा जैसा समझेंगे, कभी उससे कुछ ज़्यादा ये नहीं बनता है। बट तुम ऐसा ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करते रहोगे, तो ये क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करते रहोगे, तो तुमको वो यू कैन बेटर एक्सप्लेन द डेंजर, ये पॉलिसी लिया, ये पॉलिसी का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, everything you can explain all this quantitatively. So all these things are there. So go back to our presentation. And sir, actually these things are not in geometry. ये कोई दूसरा section चल रहा है. These things are not there in the geometry part that I am But importing. it is actually geometry, no? Yeah, yes sir. ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ये हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है, वो पढ़ाया नहीं जाता है बिकॉज समझ रहे हैं ना वो पढ़ाने के लिए भी कैपेसिटी चाहिए। वो मैकेनिकली ऐसा बोलने से फायदा नहीं होगा। अगर तुम ये बैकग्राउंड नहीं बताओगे तो ये सारे का इंटरेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट एक दो स्लाइड। सो आउट जाओ। देखो इसमें देखो कितना बेंट होता है, कितना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, सारे है ग्राफिकली दिया हुआ है, ये सारे चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड टोटल प्रॉपर्टीज जो है ये सारे है इधर। वो देखो ऑस्कुलेशन है, कार्वेचर है, तो यहाँ पर वो छोड़ देना है। इधर इधर के बाद और आगे नहीं जाना है। फिर हमारा वो सब्जेक्ट इसका एक्सटेंशन लगा के कि so geometry, knowing the geometry is very much important, and whatever we are presenting here only the subjects taught in school class 10। और इसमें एक दो दिन लगा दो, मीन्स ये तो बेसिक एक बार हो जाएगा ना। और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा तुमको मीन्स ये जो बेस तैयार हो जाएगा, इसका बाद हम लोग कैलकुलस में जाएंगे और ये जो बेसिक सब्जेक्ट हो जाएगा ना, देन वी विल स्टार्ट ऑन एक्सप्लोरिंग एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में हम लोग वो जाएंगे। और अभी एक मैं ऐप बनाया, देखा एक ऐप बनाया हम शेयर किया था। या सर आई ओपन दैट वो रीडमी फाइल तो मैंने देख ली है, बट वो मैटलैब में बोल रहा था कि शायद 18 वर्जन के लिए बोल रहा था। सर विल इट वर्क इन अदर वर्जन वगैरह कुछ नहीं है, वो चारों फाइल भेजा था। वो चारों फाइल एक फोल्डर में लगा के रन करोगे तो वो रन हो जाना चाहिए। और नहीं तो ये एक्चुअली एग्जांपल फाइल है ऐप डिजाइनर से, तुम भी वो कर सकते हो वेरी इजीली। यू कैन डू दैट ऐप डिजाइनर। एंड ऐप डिजाइनर और क्यूटी में जो हम लोग काम कर रहा हूँ, थीम इज ऑल सेम। यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वही यूज किया हुआ है, सेम थिंग वहाँ पर भी है। एंड यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग करके कर सकते हो और डिजाइनर से भी कर सकते हो। एंड दिस ऐप यू कैन deploy anywhere, means it is not MATLAB is not required for this. So in that way I was thinking that if you think from that, जो बेसिक सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लो। एंड सर उसमें जैसे ये जो पार्ट है यहाँ पे, जैसे हम कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसमें शैडो पॉइंट लाइन का साथ रिलेटेड नहीं है, ये सरफेस का साथ रिलेटेड है। 20 उसका साइड में लिख देना सरफेस। ओके। तो सर ये वाली चीजें हैं तो नहीं अभी, मतलब जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है उसमें नहीं थी, तो मे बी इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें स्कूल में तो होती नहीं है। फिर बताओ सर, जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन था तो उसमें ये चीजें नहीं थी जो यहाँ इसमें दिख रही है, किसी और सेक्शन में है। तो आई थिंक अगर हम जैसे उस ज्योमेट्री वाले बुक में केवल वो सेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं जो क्लास 1 to 10 में पढ़ाई जाती है, तो उसमें तो फिर ये चीजें आएंगी नहीं। तो शुड वी लीव इट और शुड वी इंक्लूड इट, these things, the properties?
नहीं, ये मैं हम लोग क्यों ये सब इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्टिव समझो। मैं बार बार करके ये बोल रहा हूँ, दिस इज आई एम ट्राइंग टू मेक द स्टूडेंट्स हु आर सीरियस, हु वांट टू लर्न मोर। बट ये एक प्लेस में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ये सीखने को मिलता है उसको। मैं जैसा बोलता हूँ ना, मैं जॉब छोड़ के 10 साल से ये सब मीन्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तभी मैं इसको अब कलेक्ट कर पाया एक जगह पे। तो किसी को अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है सपोज, और उसको ये बुक मिल जाएगा, तो वो तो कुछ भी कर देगा। So our target is not general students. We are very focused about the students who want to do more. जैसे मैं और एक स्टूडेंट का कहानी बताया था, वो जेना बोल के था उसका नाम, समीर जेना और समथिंग, फ्रॉम IIT गांधीनगर। 5 साल पहले शायद हम लोग वो 16 स्टूडेंट लिया था मैं ये IIT गांधीनगर से फॉर माय इंटर्नशिप। 16 लड़का था, फर्स्ट ईयर जस्ट पास किया, उनका साथ बैठ के मैं मैथमेटिक्स, तब मैं इतना आइडियाज नहीं हुआ था, एंड ये प्रेजेंटेशन तब बन तब नहीं बना, तब भी नहीं बना जब उन लोग था। तो उनके साथ बैठ के उनका कहानी सुनता था, हमारा आइडिया उनको बताते थे। होल डे भर हमारा ऑफिस था, तो मैं शायद आओ पहले का बात कर रहा हूँ, शायद 12 मीन्स NID में था शायद उस टाइम में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो NID तो 12 में किया था, 2012। सो 12 और 14 तक हम उधर था, तो उस पीरियड में 2014 और 15 में वो लोग मिला था। तो एक स्टूडेंट का कहानी तुम लोग को शायद वो बताया भी था कि वो माइक्रोसॉफ्ट मैथ मिल गया था उसको, और वो माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स मिलने के बाद वो पहले क्या शुरू किया, उसको ग्राफिंग शुरू किया। जितना बुक में जितना फंक्शन होता था वो उसको ग्राफ कर लेता था, और वो करते करते बोला सर हमको ऐसा हो गया था, कोई भी फंक्शन हम देखते तो उसको मुझे पता चल जाता ये शेप ऐसा होगा, और ये शेप ऐसा होगा पता चल जाएगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होता है, मीन्स 4 ऑप्शन रहता है, तो वो 2 ऑप्शन तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ये 2 तो होगा नहीं आंसर, और 2 क्लोज में होता है, तो उसमें थोड़ा सा हमको ये करना पड़ता है। तो बाकी लोग को जब वो कैलकुलेशन करके आंसर देना पड़ता था, बोलता मैं देख के ही वो आंसर कर सकता था। तो वो बोल रहे मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, मेरे को कभी हम टॉपर नहीं था स्कूल में, और हम बहुत मस्ती करके घूमता था, फिरता था और खेलते थे, और जो मीन्स नॉर्मल पढ़ना पड़ता है गांव में जैसा होता है ऐसे ही हम पढ़ते थे। तो स्पेशल कुछ था नहीं मेरा, बट वो माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स मिलने के बाद हमारा पूरा चेंज हो गया। सो दीज आर द थिंग्स, ये जो क्लैरिटी एक बार मिल जाएगा ना, वो तो कुछ भी कर लेगा उसका बाद। एंड थोड़ा सा तुम बताओगे हाउ यू हैव प्रोसेस दिस, क्या क्या किया था? ओके तो सर पहले तो क्या किया कि ये जो फाइल थी काफी बड़ी थी, तो उससे ये जो सेक्शन था ज्योमेट्री वाला सेक्शन, ज्योमेट्री वाला यहाँ है, हाँ तो सो आई फर्स्ट कॉपीड दिस सेक्शन टू अ न्यू PPT, और उसके बाद फिर कैसे उसे कॉपी वर्ड किया, में कॉपी कैसे किया? स्लाइड को सर कॉपी पेस्ट किया, सारे को सिलेक्ट कर लिया कॉपी, एंड देन पेस्टेड इट टू एन न्यू प्रेजेंटेशन। ओके, वो हो गया न्यू प्रेजेंटेशन, उसको फिर वर्ड में कन्वर्ट कर लिया ऑनलाइन टूल से, एंड वर्ड में जब कन्वर्ट हो गया तो यूजिंग ग्राइंड EQ मैंने लेटेक्स कोड में कन्वर्ट कर लिया। फिर जैसे ये इधर है भी ज्योमेट्री, हाँ तो दिस इज द ये लेटेक्स ग्राइंड EQ के बाद ये बन के आया था, दिस इज द लेटेक्स कोड। तो इसको फिर मैंने कॉपी पेस्ट करके ओवरलीफ में डाल दिया, दिस इज इन ओवरलीफ। मतलब स्टार्ट में डाला था तो सर बहुत ही मतलब रीडेबल नहीं लग रहा था, तो काफी कुछ उसको करेक्ट करना पड़ा, तो अभी ये रीडेबल है। तो अभी देन आई विल नाउ प्रोसीड विद द एडिटिंग पार्ट। और इसमें फिगर्स वाली प्रॉब्लम आ रही है कि जो फिगर्स थे वो लेटेक्स कोड के थ्रू कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो आई विल इंक्लूड द फिगर्स आल्सो फॉर ऑल द सेक्शंस। ठीक है। एक
ये भी आइडिया है। देखो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहाँ से शुरू होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल से। ट्रायंगल से। ट्रायंगल। पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या है? एक Sir, क्लोज एरिया बना सके हम, 2 या 3, जिसमें 3 पॉइंट लेकर। हाँ, डेफिनेशन तो कुछ होना चाहिए ना ध्रुवम। ये देखो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, पॉली मीन्स मेनी, गॉन मीन्स एंगल। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है? नीचे मत जाओ। ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 एंगल रहता है। ओके, Yes. Yes. तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जिसमें 2 एंगल है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें एक एंगल है। हाँ, स्टार्ट पर वेरोले अरेस्ट हो गए। Go down. ये देखो, monogone, mono means single gone or bigone, and then triangle. ये सारे मेरा क्या हुआ है? लॉजिकल है नहीं है? Yes, sir. Sure. जो भी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इसमें भी बहुत सारे सोचने का, बोलने का, देखने का है, जो रियली तुमको बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट इंजीनियर, ग्रेट साइंटिस्ट बना सकता है। Any other point you want to share? And sir, जैसे इसमें क्या था, in this book I find that everything is, जैसे जो बुक में ऐसे नॉर्मल बुक में होता है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, तो इस बुक में ऐसे फॉलो नहीं करते हैं ना हम लोग, मतलब इट विल बी पॉइंट वाइज और नंबर्ड, एवरीथिंग इज यूजिंग, तो ऐसा ही ठीक है, और आई शुड कन्वर्ट इट इनटू पैराग्राफ्स लाइक दिस, नंबरिंग इज ओके, और एट प्रेजेंट ऐसे रखो, डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, फिगर लगाओ, फिगर। हाँ, इट्स फिगर में जैसे अब इतने सारे फिगर है, तो
कैन आई यूज मतलब ऐसे टिक्स जो TIKZ है उससे थोड़ा टाइम लगता है, तो मे बी सम अदर टूल आई कैन यूज एंड जस्ट कॉपी द इमेज, सो कैन आई डू दैट थिंग आल्सो? जिसमें इजिएस्ट होता है वही करो, कोई बाइंडिंग नहीं है। और यहाँ पर वो तो सब ड्रॉ करना है ना, ये जियोमेट्री में सारे ड्रॉ करना पड़ता है। एंड ड्रॉ टूल इज वेरी गुड टूल इन ओवरलिप इटसेल्फ। एक ब्लॉक कर लो, वो ब्लॉक को कॉपी करके सारे हो जाएगा। ओनली थिंग यू हैव टू चेंज दैट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है। या यस ओके 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 सर, आई विल इंक्लूड द पॉइंट्स एंड और बाकी एडिटिंग I don't think much editing will be required then, अगर सारे का फिगर होगा तो वो it is clear. Okay. And yes sir, for arithmetic part, can you tell someone to do that part जो import करके और उसको readable बनाने वाला काम है? इसमें अरिथमेटिक पार्ट में शायद कोई ये नहीं है, नंबर पार्ट है। नहीं सर, देयर वेयर मतलब बहुत सारे फिगर्स हैं और अगर लेटेक्स कोड को कॉपी, सर शुड आई डू दैट? नो, लेटेक्स कोड कॉपी करके देखते हैं वो कैसा लग रहा है। कैन यू शो मी? या यस सर, राइट। इनके हेल्प लो ना, ये सादा एंड प्रेम का। हाँ सर, ये जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो वो आई विल शो यू। अभी स्टार्ट में ऐसे लगता है ना, तो सर यू कैन सी दिस थिंग्स, मतलब कुछ भी आ रहा है तो अभी काफी कुछ इसमें से हटाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, देन इट इज बिकमिंग रीडेबल। जो टेबल वगैरह ये बनाता है, इट इज नॉट प्रॉपर आल्सो, तो काफी चेंजेस वी हैव टू मेक। मतलब सी सर, ये सब जैसे देख के इट इज नॉट लुकिंग गुड, तो मतलब पहले तो इसको वो बनाना पड़ेगा, फिर ही एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो अच्छा आ गया, जो आया उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कुछ, ऐसा है? नहीं सर, जैसे काफी कुछ अभी यहाँ तो सही है, कभी जैसे सर ये पॉइंट वाइज कुछ भी आ गया है तो जैसे पता नहीं चल रहा है ना क्या हो रहा है, जैसे इट इज नॉट प्रॉपर लुकिंग प्रॉपर, तो उसको पहले मतलब ऐसे इतना सारा स्पेस का गैप हो रहा है, फिर मेनी थिंग्स आर देयर। तो पहले एक जैसे वो वाला जो मैंने बनाया है ज्योमेट्री वाला, तो इट इज लुकिंग प्रॉपर, जैसे सेक्शन है, सब सेक्शंस है, तो वैसा कुछ एक बार हो जाता है, फिर एडिटिंग स्टार्ट कर सकते। तुम बोल रहे हो फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में कर देंगे। मटेरियल में तुम मटेरियल एंड ग्राफ, इसमें थोड़ा ध्यान दो, वो ऐसा रहने दो, उसको कोई ये नहीं, जरूरत नहीं है। हेलो, नक्का दीदी हेलो सर। हाँ बोलो। नेट इशू। हेलो, हेलो सर। yes, यस सर। I think signal problem. Okay sir। I think signal problem. Let us end this meeting here. You need not do very precisely. Let it be like that. Formatting will do there. If you want to some modification, you can do, or you can leave it like that. Once it has come in overlap, we will do it leisurely. We can do it leisurely. If you don't want to, if you are not required to
spend much time on this. Sir, what I am saying कि जैसे editing start करने से पहले it should be readable ना. जैसे अभी जैसे you can see this page, it is not looking readable. मतलब whatever it is written very much I'm unordered. telling that editing part, all these things we will do this. We will not include these chapters at present in any. Please come. Okay, okay, sir. Then it is. So you need not spend. It has come in this and in a place that is sufficient. We will work on that later on. Okay, sir. Okay. Then, sir, I will work on geometry only now. Yes. Geometry and this part, whatever discussed now, no, and that line and mathematics definition, and that day we discuss some examples also we have given. So here we have given one radius and area definition, and you should include those examples that day. I don't know whether you remember that or not. This angle, why we study angle, that angle and length relation, this calculus we study for this or Archimedes principle we use for calculating area. Yes. Triangle Okay. area is known, so we can use that to know the curved area. So we will stop here now. Okay, sir. Okay. So good night. These are ideas. These rational numbers are, you have seen now. They are geometrically how to find rational numbers. These are good topics. You will enjoy if you do, and if you we have all modeling on that also.